Yesterday we heard a message from Brother Zach about loving money, love of money, and love of sexual pleasure. कल हमने ब्रदर जैक से वचन सुने थे पैसों के प्रेम के विषय में और लैंगिक अभिलाषाओं के विषय में. So this is one thing that is quite hidden deep within all men and including believers. हम देखते हैं ये बातें हैं जो बहुत सारे लोगों के अंदर गहराई से छिपा हुआ रहता है और विश्वासियों के अंदर भी ये रहता है. When Jesus came into this world, he did not come to make a new religion. जब यीशु मसीह इस संसार में आए तब उन्होंने एक नया धर्म की सृष्टि करने के लिए वो नहीं आए. There are so many religions in this world. इस दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं. And even the Jewish religion, even though instituted by God, turned out to be just an outward show. जैसे कि यहूदी जो धर्म है ये परमेश्वर ने खुद ही बनाया परंतु वो एक भारी दिखावटी का धर्म हो गया बाद में. At the time of Jesus, it was only everything was outward ceremonies, outward prayers, outward sacrifices, but the inward reality was missing in most of the lives of the people. यीशु मसीह के समय में उनका जो धर्म था बाहरी दिखावटे जो भारी यागार्पण बाहर का तौर तरीका रीति रिवाज था परंतु उनका जो अंदरूनी जीवन थे पूरी तरह से वो नष्ट हो चुका था. Because the inner life, they were not really very much concerned. There are very few people who are really concerned about the inner life. जो बहुत ही कम लोग हैं जो अपने अंदरूनी जीवन के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं. In the Old Testament, there were godly people like Noah and Enoch and Moses and Abraham. They were humble people and they knew that the outward blessing was not so important as the inward blessing. तो हम देखते हैं पुराने नियम में जैसे कि परमेश्वर के दास लोग थे नूहा अब्राहम हानूक ये लोग जानते थे कि अपने आप को इतना उन्होंने नम्र किया. वो जानते थे कि बाहरी जो आशीषें हैं इतनी महत्वपूर्ण नहीं रखती अंदरूनी जीवन के सामने. But there were very few of them. परंतु उनमें से बहुत ही कम ही लोग थे. वैसे David was a man after God's own heart. He loved God so much, but then most of the people around him did not love God so much. तो दाऊद जो था परमेश्वर के हाथ के हृदय के अनुसार रहने वाला जो व्यक्ति था वो परमेश्वर से बहुत ज्यादा प्रेम करता था और उसके आजू बाजू के लोग इतने परमेश्वर से प्रेम नहीं रख पाए उस समय. All these people had a sense of their own inner need and they knew that there was so much imperfection in them that they wanted to be set right with God all the time. तो उनके इन सारे लोगों के अंदर ऐसी एक अवस्था थी कि वो जानते थे कि उनके अंदर बहुत सारी कमियां हैं और वो सब चीजों को परमेश्वर के सामने वो सही करना चाहते थे. Many times they fell into sin, even these godly people, but because they didn't have the holy strength of the Holy Spirit was not given till then. तो बहुत सारे समय हम देखते हैं कि ये जो परमेश्वर के भक्त थे वो पाप में गिर जाते थे क्योंकि पवित्र आत्मा जो है तब उनको दिया नहीं गया था अंदर. But still they came up to such good heights and they lived godly lives. फिर भी वो इतने ऊंचे स्थान में पहुंचकर एक भक्ति का जीवन परमेश्वर के लिए वो जी पाए. But now with the coming of the Holy Spirit since the day of Pentecost, our lives can be much better because our lives can be changed from inside. तो पेंतिकोस के बाद जब पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में आ चुका है तो हमारा जीवन जो है और बेहतर बन सकता है अंदरूनी भाग में पवित्र आत्मा के बल के द्वारा. Jesus said, "You are the light of the world." यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो. And you are the salt of this earth. तुम इस पृथ्वी के नमक हो. How does a person become a light? एक व्यक्ति कब ज्योति बन सकता है? The light comes because of the oil that is there in the vessel. तो जो ज्योति है तब चमकती है जब उस दीवट में तेल रहता है. And we are supposed to get the oil of the Holy Spirit in our life. That is the character of the Lord, and then we will shine in this world. और हम पवित्र आत्मा की जो सामर्थ्य हमारे जीवन में पाना है हमें जो कि यीशु मसीह का जो स्वभाव को अपने जीवन में लाना है तभी हम इस दुनिया में चमक सकते हैं. And we are also supposed to be the salt of this earth. और हमें इस पृथ्वी का नमक भी बनना है.
And the salt gives, it's a very small thing, but it gives flavor and taste to the food. जो नमक है बहुत ही छोटी एक बात है, परंतु वो जो खाने में बहुत स्वाद लाता है। And it also preserves the food. और वो खाने को बचा भी सकता है नष्ट होने से। And that is why, as believers, that is the main thing about the salt, is that it has a certain character about it. तो हम नमक के बारे में देखते हैं, उसके कुछ चरित्र है या गुण है। Verse 50 of Mark chapter 9, Mark chapter 9 verse 50. मरकुस 9 उसका 50। The salt is good, but if the salt becomes unsalty, what will you make? How will you make it salty again? Have salt in yourselves and be at peace with one another. नमक अच्छा है, पर यदि नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसे किससे स्वादित करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। This was speaking about the rock salt that they used in Jesus' time. The small rocks were there which contained salt, and when they had to cook something, they had to put it in the curry or in the food. तो ये जो यीशु मसीह के समय में जो खड़ा नमक था उसके बारे में कहा गया है, वो जो नमक है जब आप खाना बनाते हो तो उसमें उसका इस्तेमाल करना पड़ता था। So after it was put in the food, then the salt would go into the food and then to the curry, and after that the rock would not contain salt. तो हम देखते हैं जब वो जो नमक को अगर हम हमारे जो खाने में डालते हैं तो वो जो है पूरी तरीके से खाने में घुल जाता है, फिर वो दिखाई नहीं देता है फिर उसमें। And then they would take the rock and throw it out. They would not keep it in the house because it contains no salt. तो फिर उस पत्थर को वो निकाल के बाहर फेंक देते थे, क्योंकि फिर बाद में उसमें कोई नमक का अंश उस पत्थर में नहीं रहता था। So the Lord says that we should be rocks and particles where we have got salt in our lives, that we can bring peace in the different situations of life. तो हमें भी उस चट्टान का तो छोटा सा टुकड़ा बनना है जहाँ पे नमक हो और वो जो है हमारे जीवन में शांति लाए और सबके साथ वैसे ही मेल मिलाप से हम रहें। We are not like people who are supposed to keep on quarreling and fighting with people. हमें ऐसे लोग नहीं बनना चाहिए जो लोगों के साथ हमेशा लड़ते रहते हैं या झगड़ते रहते हैं। A child of Christ, a child of God, a follower of Jesus Christ will always be peaceable. तो जो प्रभु का जो संतान है, यीशु मसीह का जो चेला है, उसका पीछा करता है, वो हमेशा शांति से रहने वाला होगा। They will not be argumentative. वो किसी के साथ वाद विवाद नहीं करेगा। They will keep quiet and then God will work on their behalf. और वो शांति से रहेंगे और परमेश्वर उनके लिए कार्य करेंगे। In the middle of people everywhere, in the homes and the offices and places where people fight and quarrel for such a lot of things, these people are the most peaceful people on this earth. जबकि घरों में, दफ्तरों में और बाकी सारी जगहों में लोग जो बहुत सारे लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, परंतु ये ऐसे लोग हैं जो हर जगह शांति के साथ शांतिपूर्वक रहते हैं। Why? Because they follow the Prince of Peace. क्योंकि वो जो पीछा करते हैं जो शांति के सिद्धांतों को। Because Jesus said that if my kingdom was of this world, my disciples would also be fighting. जैसे कि यीशु मसीह ने कहा था कि अगर मेरा जो राज्य है इस पृथ्वी का रहता तो मेरे चेले भी लड़ते झगड़ते ही रहते थे। Where's that verse? I think it's in John chapter 20. यूहन्ना 20। Wait, John chapter. John chapter 18. Yeah, John chapter 18. 36. Verse 36. यूहन्ना 36, 18 उसका 36 और 27 वाक्य। 36-37। It says, my kingdom is not of this world. If my kingdom was of this world, then my servants would be fighting, that I might not be delivered up to the Jews. But as it is written, my kingdom is not of this realm. यूहन्ना 18 अध्याय उसका 36 वचन। यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं,
यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं। So what we learn from this that we should follow Jesus and never keep on fighting and quarreling. इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें यीशु मसीह का पीछा करना है, हमें कभी भी लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। God takes care of all our future. He is there to help us. वो परमेश्वर जो है हमारे सारे भविष्य का जो है ख्याल रखेंगे, वो हमें सहायता करेंगे। We should be the salt of this earth and we should be the light of this world. हमें इस दुनिया का ज्योति बनना है, इस पृथ्वी के नमक बनने हैं हमें। In Philippians chapter 2, it says that we should shine like stars, stars of the sky in this dark world. तो जैसे फिलिपियो 2 में लिखा हुआ है कि इस अंधेरी दुनिया में हमें नीले गगन के जो तारे हैं उसकी जैसा चमकना है। We sang that song today. हमने वो गीत को आज गाया। It says, Philippians chapter 2, verse 14 and 15. फिलिपियो 2, 14 और 15 वचन। It says, do all things without grumbling and or disputing, that you may prove to yourselves to be blameless and innocent, children of God above reproach, in the midst of a crooked and a perverse generation, among whom you appear as lights in the world. सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो। The whole world is filled with crooked and perverse people. पूरी दुनिया जो है कुड़कुड़ाने वाले लोगों से, हठीले लोगों से भरे हुए हैं, including so many believers and leaders. और जितने बहुत सारे विश्वासी और जो प्राचीन है वो भी उसमें शामिल है। And in the midst of all this darkness, there are few God's children, His disciples, who shine as lights, who never murmur, will argue and complain. और इन सारे के बीच में इस दुनिया में ऐसे बहुत कम जो परमेश्वर के चेले हैं, जो उनके पीछे करने वाले हैं, जो दीपकों के समान रोशनी देते हैं, बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद किए हुए जीते हैं। So what is coming out of their mouth only thanksgiving and praise. उनके मुंह के बाहर क्या निकलता है? सिर्फ परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद। And that is how they shine as lights. They are not grumbling and complaining like the people of this world or other believers, but God has given them a spirit of praise that they can praise the Lord in every situation. And for every situation we can give thanks. तो वो इस दुनिया के लोगों की तरह कुड़कुड़ाते नहीं, शिकायत करते नहीं। परमेश्वर ने उन्हें ऐसी आत्मा दिया है कि सारी परिस्थितियों में वो परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद हमेशा कर पाते हैं। So brothers and sisters, we must desire this life. God is changing us from the inside so that we can be light and we can be the salt of this earth. तो हमें भाइयों बहनों, हमें परमेश्वर अंदर से जो है बदल रहे हैं, तो हमें इस जीवन को पीछा करना है ताकि हम इस पृथ्वी के नमक बन सके और इस जगत की ज्योति बन सके। This is how we can glorify God and praise God, and God can be glorified. ऐसे ही हम परमेश्वर को महिमा कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, और परमेश्वर की नाम की महिमा इसके द्वारा होगा। It is quite easy for us to go to a meeting and sing songs, or if you have a good voice, or to preach, also have a good ability, and do so many good things just to impress people. But God has to be impressed with our lives when we are humble in heart and God gives us His own character. तो बहुत ही आसान होता है कोई कलीसिया में जाना, वहाँ पे अच्छी आवाज हो तो गाना गाना, या तो फिर अच्छा प्रचार करना, परंतु परमेश्वर उसी में प्रसन्न होता है जब अपना जो जीवन है वो परमेश्वर के लिए बदल पाए और परमेश्वर में आगे बढ़े। The outer ceremonies are quite easy to do, but the inner life, it is very difficult because we have to lay down our own will and do the Lord's will. बाहरी जो काम है करना बहुत ही आसान है, परंतु अंदर का जो बदलावट, वो जीवन को जीना बहुत ही कठिन है। उसमें क्या करना पड़ता है? हमारी स्वार्थी इच्छा को हमें स्टॉप कर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें चलना पड़ता है। That is why every day we have to take up our cross and follow the Lord and obey His word. इसलिए हमें रोज क्रूस को उठाना है, परमेश्वर के पीछा करना है और उसके वचनों को पालन करना है। And that is why all these letters and epistles of
our Lord Jesus, the letters of Apostle Paul are written mainly for believers that we may grow and change, our character will improve and change and become like Jesus. तो इसीलिए ये जो पत्र है सुसमाचार है जो विश्वासियों के लिए लिखा गया है, ताकि हमारा जो चरित्र बदल जाए और हम इसमें बढ़ पाए और हम जो है यीशु मसीह के जैसे एक चरित्र में पूरी तरीके से बदल जाए. This is a verse in Titus chapter 2. तीतुस 2 में verse 10, 9 and 10 we can read. 9 और 10 वचन. Says, urge bond slaves to be subject to their own masters in everything, to be well pleasing, not argumentative, not pilfering, but showing all good faith, that they may adorn the doctrine of our God and Savior in every respect. दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहे और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखे और उलट कर जवाब न दे, चोरी चालाकी ना करे, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले, कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश को शोभा दे. So it says we must adorn the doctrine of our Lord. That is, we have to give, as the sister said, shobha. We should give the adoration, adorn. That is the shobha to the word of God. तो हमें जो है परमेश्वर की जो वचन है, उनके जो उपदेश है, उसको हमें सराहना है, उसका शोभा हमें देखना है. And how do we adorn the doctrine when we are living that life? कैसे हम उसे सराह सकते हैं जब हम वो एक जीवन हम जीते हैं तभी. Early in my Christian life, there was a godly man who said, "See, we love to sing these beautiful songs तो to the Lord." तो मेरे एक प्रभु के दास थे जो मुझसे कहते थे कि एक परमेश्वर की जो गाना बहुत उनको अच्छा लगता है. We feel very happy. वो बहुत ही खुश होते हैं उससे. But everybody said, how much happier we will be when we already live these songs and live the life and then sing the song. फिर उन्होंने कहा कि कितना और आनंदित होगा जब ये जीवन हम जिएंगे और फिर ये गीतों को हमारे जीवन में जब हम गाएंगे. Then the songs will be 10 or 100 times more meaningful. फिर ये जो गीत जो है हमारे जीवन में 100 गुना और अर्थवत हो जाएगा. The praises of God will be more meaningful to us, and God also will be so happy with us. जो परमेश्वर की स्तुति है हमारे लिए बहुत ही अर्थ का कारण होगा और परमेश्वर भी उसमें बहुत प्रसन्न रहेंगे. So we must start faithfully living this life in our home, in our workplaces, in the church, where nobody sees, so that God can be well pleased with us, and then the true life and true praise of God can come out of our mouth. तो ये विश्वास योग्य जीवन जो है हमारे घर में, हमारे दफ्तर में, हमें कलीसिया में जीना है, ताकि परमेश्वर जो है हमसे प्रसन्न रहे और परमेश्वर की जो अच्छा जीवन है, वो चरित्र है, हमारे द्वारा हम जिए और परमेश्वर की महिमा दे. See, when we become born again, come to the Lord for the first time, God has forgiven all our past sins and given us a new life. जब हम नए जन्म पाके मसीह में पहली बार आते हैं तो परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को, पुराने पापों को क्षमा कर हमें एक नया जीवन वो देते हैं. And now is the beginning of our spiritual growth. और अभी हमें अपनी आत्मिक उन्नति की जो है वो शुरुआत है अभी. Then we will discover so many wrong things in our life, so many sins, bad habits, bad words, bad attitudes and motives. And God will correct us. And then as we listen to the Lord, then our spiritual life will grow. फिर हमें परमेश्वर जो है खुलासा करके देते हैं हमारे जीवन के जितने गलत जो तौर तरीके हैं, जो गलत आदतें हैं, गलत मकसद है. फिर परमेश्वर में जब हम बातों को सौंपते हैं और उन बातों को हम सुधारते हैं अपने जीवन में, तो हमारी जो है आत्मिक उन्नति होती है. See, God, as we heard yesterday, God has not just called us to come to heaven. God has called us to become like Jesus Christ and to have His character. जैसे हमने कल सुना, परमेश्वर ने हमें सिर्फ स्वर्ग में आने के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने हमें बुलाया ताकि हम यीशु मसीह का जो चरित्र है हमारे जीवन में हम पाके वो जिए. When we first come to the Lord, we are like little babies. जब हम पहले मसीह में आते हैं तो एक छोटे से बच्चे के समान रहते हैं. We have got so many faults and we are not at all mature. हमें बहुत सारी कमियां रहती है, गलतियां रहती है, हम सिद्ध नहीं थे तभी. And that is why we have to learn obedience and we have to grow
and then we become mature, and then we can have fellowship with the Lord in a much more intimate way. इसलिए हमें जो है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है और फिर हमें जो है आत्मिक उन्नति मिलेगी और परमेश्वर के साथ एक अच्छी संगति में हम रह सकते हैं, बढ़ सकते हैं. And that is why the grace of God has been given, the help of God, tremendous powerful help of God has been given to each one of us. इसलिए परमेश्वर जी की कृपा है और जो मदद है हम सभी को परमेश्वर ने दिया है. And verse 11, Titus chapter 2 onwards, it says, 11, 12, 13, it says, for the grace of our God has appeared, bringing salvation to all men. Read, sir. तीतुस 2:11, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है. Then verse 12 says, instructing us to deny ungodliness and worldly desires, and to live sensibly and righteously and godly in this present age. 12 वचन, और हमें चिताता है कि हम भक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं. And verse 13 says, looking for the blessed hope and the appearing of the glory of our Lord, great God and Savior Christ Jesus. 13 वचन, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें. And verse 14 says, who gave himself for us, that he might redeem us from every lawless deed and purify for himself a people of his own possession, zealous for good deeds. 14 वचन, जिसने हमें अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो. So the Lord Jesus has given us His grace that we may become godly people and we may be zealous for doing good, just as God is zealous for doing good. तो परमेश्वर ने अपनी जो अनुग्रह है हम पर दिया है ताकि हम जो है अच्छे कामों को, भले कामों को कर पाए. जैसे परमेश्वर करता है, जैसा परमेश्वर जो उत्सुक रहता है अच्छे काम करने के लिए, वैसे भी हम उत्सुकता से वैसे काम करें. For that we have to purify ourselves, and the Lord also helps us to purify our own selves. तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमें अपने आप को शुद्ध करना है और परमेश्वर भी हमें सहायता करते ताकि हमारे शुद्धिकरण हो सके. How do we purify ourselves? By repenting of the sin that we have done and turning away from it and asking the help of God. कैसे हम शुद्ध हो सकते हैं? हमने जो पाप अपराध किया उसको पश्चाताप करके जब हमसे मन फिराने की हम कोशिश करते हैं और परमेश्वर से उसकी सहायता हम मांग सकते हैं. For example, we saw the love of money. जैसे कि उदाहरण के तौर पे पैसों का प्रेम हमने देखा. We all love money very much. हम सभी पैसों से बहुत प्रेम करते हैं. But the Lord will tell us now to give up the love of money. You'll have to love God and keep people first. And you'll have to stop being so selfish and to live for others. तो परमेश्वर अभी कहेंगे तुम्हें उस पैसे का प्रेम जो है उसे पूरी तरीके से त्यागना है. तुम्हें परमेश्वर को पहले स्थान पे रखना है और निस्वार्थ होकर लोगों के लिए भी तुम्हें सहायता करनी है. The Apostle Paul in Acts chapter 20, Jesus said, it is more blessed to give than to receive. प्रेरितों के काम 20 में लिखा हुआ है कि लेने से अच्छा देना बहुत ही आशीषित है. Because that is the nature of God to always give. क्योंकि वही है परमेश्वर का एक स्वभाव, वो हमेशा देते हैं. And the nature of man is always to get more and more. और मनुष्य का स्वभाव क्या है? हमेशा और लेना. And still they are not satisfied. और उससे भी वो संतुष्ट नहीं होते हैं. Jesus was a king, he just gave. And we also, God wants us also to be like kings, to bless other people. यीशु मसीह जो थे वो राजा थे, उन्होंने सभी को दिया. तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी वैसे बने जो हमेशा लोगों को देते रहे. Not only in the area of money, but all good deeds. We can speak good words and good actions to all the people, especially in our home, and especially all the relatives around us and all the people around us, that we can be a blessing to them. सिर्फ पैसों के मामले में नहीं, सिर्फ पैसे ही नहीं, परंतु हम अपने जो शब्द हम बोलते हैं, जो कार्य हम करते हैं अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों के बीच में, बाहर जो लोगों से हम घिरे हुए, उनसे अच्छे शब्द हम दे सकते हैं, उन्हें अच्छे से उनसे बर्ताव कर सकते हैं. That is how Jesus said, people will see a good deed, they'll glorify my Father in heaven. इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो अच्छे कर्म करते हैं वो मेरे पिता की महिमा करते हैं.
because they have become like Jesus now, becoming more and more like Jesus. क्योंकि वो और यीशु के समान बन जा रहे हैं अभी। From bad deeds they started good deeds. बुरे कामों से वो लोग अच्छे कामों की तरफ आए हैं। They stopped being more and more selfish, but being more and more unselfish. अभी स्वार्थीपन उन्होंने छोड़कर निस्वार्थ तरीके से वो चलते हैं। And one day Jesus is going to come and see what we have done in our inner lives. और यीशु मसीह एक दिन आएंगे और देखेंगे कि हमने अपने आंतरिक जीवन में कैसे जिया है। And thus we will adorn the doctrine of our Lord and Savior Jesus Christ. वैसे ही हम उस परमेश्वर की जो यीशु मसीह का जो वचन है उस बातों को हम सराहते, उसे शोभा के साथ देख सकते हैं। We have the word of God and we live the word of God. हमारे पास प्रभु का वचन है और हम इस प्रभु के वचन को जीते भी हैं। So many believers have the word of God, but they don't live the word of God. बहुत सारे विश्वासी जो हैं उनके पास परमेश्वर का वचन तो है, परंतु उस वचन को वो जीते नहीं। They live like the people of this world. वो इस संसार के लोगों के जैसे ही जीते हैं। They love money very much. They fight and quarrel. वो पैसे से प्रेम रखते हैं, वो लड़ते झगड़ते हैं। And their minds and desires are full of immoral thoughts. और उनकी जो बुद्धि है और वो मन है पूरे जो अश्लील बातों से भरी हुई है। And their heart is full of pride and they get angry. और उनके हृदय में पूरा घमंड है और बहुत गुस्सा हो जाते हैं वो। When God looks at us, God wants us to be beautiful. परमेश्वर जब हमारी ओर देखता है वो चाहते हैं कि हम सुंदर हो। The only beauty that God sees in us is the nature of Jesus Christ. एक ही जो सुंदरता तो परमेश्वर हम में देखती है वो है यीशु मसीह के जैसा एक जीवन। In 1 Peter chapter 3, पहला पत्रस 3 अध्याय verse 3, it says, 3 वचन, it speaks mainly to women and also to all of us, to all men. Let not your adornment be merely external, braiding the hair and wearing gold jewelry and putting on dresses. यहाँ लिखा हुआ है, और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंदने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। So this is what people like to adorn, especially women like to decorate themselves with all sorts of clothes and all sorts of ornaments and gold and silver. The Lord says, the Bible says, don't decorate yourself with all these things. तो यही है बहुत लोगों को जो सराहना लगता है, क्योंकि जो खास करके जो महिलाएं रहती हैं वो अपने आप को इन सारी चीजों से श्रृंगार करती, जैसे कि भांति भांति के कपड़े और सोने के गहने और बाल गूंदना। तो परमेश्वर कहते हैं कि ऐसे दिखावटी जो श्रृंगार है वो तुम्हारा नहीं होना चाहिए। You must decorate yourself, but not decorate externally. Decorate internally. परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें श्रृंगार करना है बाहरी दिखावटी तरीके से नहीं, परंतु अंदरूनी जीवन में श्रृंगार होना चाहिए। Why do people wear very beautiful clothes and all gold and silver and all these things on their head and makeup and all that, so that they look more beautiful? क्यों लोग बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, गहने पहनते हैं, बहुत सारा मेकअप करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो सुंदर दिखे। But what about the inside? Verse 4 says, let it be the hidden person of the heart and the imperishable quality of a gentle and a quiet spirit, which is precious in the sight of God. फिर 4 वचन में लिखा है अंदरूनी जीवन के बारे में, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। What is beautiful and precious in the eyes of God is a gentle and a quiet spirit. परमेश्वर की नजर में सुंदर और उनको जो भावता हुआ क्या है, वो नम्रता और मन की दीनता का जो स्वभाव है वही। What is the opposite of a gentle and a quiet spirit? नम्रता और दीनता का विरुद्धी शब्द क्या है? Very harsh and very loud talk and loud behavior. बहुत कठिन और बहुत गुस्से वाला, क्रोध वाला एक स्वभाव। That is how all of us are. और ऐसे ही हम सब हैं। We are very overconfident. हम बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए रहते हैं, like to show off, दूसरों को दिखाने के लिए, and how big we are, how good we are. हम कितने अच्छे हैं, हम कितने महान हैं।
But these are the things that are not pleasing in the eyes of God. परंतु ये सारी चीजों जो है परमेश्वर की नजरों के सामने उनको प्रसन्न नहीं देता। And all these people try to show up and make themselves look very beautiful outside. और ये सारे लोग जो है ये सब करके अपने आप को बाहरी रूप से सुंदर दिखाने की कोशिश करते हैं, So that we can impress all human beings. ताकि हम दूसरे जो मनुष्य हैं उनको प्रभावित कर सके By our looks and by our voice and by our hair and by our clothes, all these things. पर हमारे जो हमारी सुंदरता से, हमारे कपड़ों से, हमारे बालों से हम दिखावा करते हैं। But God says we have to adorn ourselves with a gentle and a quiet spirit which is precious in the sight of God. तो परमेश्वर कहते हैं हमें नम्रता और मन की दीनता का जो है वो श्रृंगार करना है, जो कि परमेश्वर की नजरों के सामने बहुत ही मूल्यवान है। So in verse 5 says, in this way, at former times, the holy women also who hoped in God used to adorn themselves, being submissive to their own husbands. 5वां वचन, और पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। So the Lord wants us to have a humble, submissive spirit, especially for women, to their own husbands, so that they can adorn. That is the way of adorning themselves. तो परमेश्वर चाहते हैं कि हमें एक नम्रता और एक पति के अधीन में रहने का एक स्वभाव होना चाहिए जो हमें शोभा देता है। परमेश्वर यही चाहते हैं खास करके स्त्रियों के लिए। People in this world do not have much value for a humble spirit and a submissive spirit. इस दुनिया के लोगों को जो अधीनता में और नम्रता से रहने वाला जो आत्मा है वो इतना भाता नहीं है। Such people will not win the beauty contest. ऐसे लोग जो है ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पहले स्थान पे नहीं आ सकते। They will be despised. उनकी निंदा की जाएगी। For God, these are the most beautiful people in this world. तो परमेश्वर से कहते हैं कि यही बहुत सुंदर लोग हैं इस संसार के। Moses was the meekest man who lived in this earth. जो मूसा जो है इन संसार में रहने वालों में से सबसे शांत और दीन व्यक्ति था। When people accused him and did all sorts of things, that he just kept quiet. जब लोगों ने दोष लगाया, बहुत सारी बुरी बातें उसके विषय में कहा, तो भी वो चुप रहा। Earlier he was such a fighter cock, he used to fight and kill people. Now he became humble and quiet. पहले जो था वो बहुत झगड़ा करता था, लोगों को मार घात भी कर देता था, परंतु अभी वो एक नम्र हो गया और दीन हो गया था। Earlier he was so talkative and talked such a lot. Now he could not even talk. पहले वो बहुत बातें कर सकता था, बहुत अच्छे से बोल सकता था, परंतु अभी वो बात भी नहीं कर सकता था। Because of that, God could speak to him face to face. इसी वजह से परमेश्वर जो है उसके आमने सामने आकर उससे बातें कर सके। God could not speak to other people face to face because their hearts were so proud and they were arrogant. दूसरे लोगों के साथ परमेश्वर आमने सामने नहीं बात कर सके क्योंकि उन लोगों के मन में घमंड था, अहंकार था उनमें। These are the beautiful people who adorn themselves internally. तो हम देखते हैं ये जो सुंदर लोग अपने आप को अंदरूनी तरीके से बहुत अच्छे से उन्होंने शोभा दे के रखा था। Because these are the qualities of God. क्योंकि ये सारे जो गुण है वो परमेश्वर के थे। God is so glorious and God is so humble, and that's why He loves us to become like Him. तो परमेश्वर जो महिमा से भरा हुआ है और नम्र है, वो चाहते हैं कि हम भी उनके समान हो जाए। That all the things that are inside, that is the intentions and the thoughts of our heart, would be well pleasing in His sight. ताकि हमारे जीवन के जो अंदर के सोच है, विचार है, मकसद जो भी है, जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले होने चाहिए। And that's why God is more interested in the inside rather than the outside. इसलिए परमेश्वर हमारे अंदरूनी जीवन में ज्यादा दिलचस्पी रखता है, ना कि बाहरी जीवन में। That is why it's more important to have character than to have more knowledge. इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे पास एक चरित्र हो, ना कि बहुत ज्यादा ज्ञान। Now, because of the internet and all that, everybody has got lots of knowledge about lot of biblical things. तो हम देखते हैं इंटरनेट जो हमारे पास है उसके द्वारा बहुत सारे लोगों को जो है बाइबल के बारे में बहुत सारा ज्ञान मिल जाता है उससे। But their character is so much lacking, and without there is no peace, and there is all sort of immorality and all sort of anger and love of money inside their heart.
तो उनका जो चरित्र है बहुत ही गंदा रहता है, उनके अंदर बहुत जो पैसों का जो प्रेम, ये संसार की अभिलाषाएं, अश्लील बातें जो है उससे भरी हुई रहती है। The religious leaders in Jesus' time, that the Pharisees, they were very good outwardly. Outwardly, they looked very good. यीशु मसीह के समय पे जो धार्मिक जो फरीसी थे, वो लोग सब जो है उनका जीवन बाहरी रूप से बहुत अच्छा दिखता था। In Matthew chapter 23, मत्ती 23 verse 28, 28 वचन। Jesus told them, "Even so, you too outwardly appear righteous to men, but inwardly you are full of hypocrisy and lawlessness." इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। That means all the wrong things you are doing, you are so much filled with disobedience, and they are trying to make a show of the whole thing. और कहते हैं कि तुम बहुत सारे बुरे काम करते हो, आज्ञाकारिता के अधीन में नहीं हो, परंतु तुम बहुत सारे काम करके दिखावा करते हो। That is why God loves all sinners, but God hates the hypocrisy. That's trying to show off that we are something good. इसलिए परमेश्वर जो है सारे पापियों से प्रेम करते हैं, जो पाखंडी है उनसे वो नफरत करते हैं, जो दिखावा करते हैं भारी रूप से। Verse 25 said, Jesus said, "Woe unto you," means all bad things will happen to you, you hypocrites, because you clean the outside of the cup of the dish, but inside are full of robbery and self-indulgence. 25 वाक्य में यीशु कहते हैं, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर असंयम से भरे हुए हैं। That means they were full of love of money, and they had loved money so much, and outside they made a big show of giving money to the Lord, and also they were full of all immoralities in their thoughts, and outside they appeared to be very righteous. तो अंदर उनके जो है बहुत पैसों का प्रेम था, परंतु वो गरीबों को देकर दिखावा करने की कोशिश करते थे कि वो पैसा देते हैं, और उनके जीवन में बहुत सारी अश्लीलताएं थी, परंतु वो बाहरी रूप से सबको अच्छे दिखाई पड़ते थे। How did they become like that? वो ऐसे कैसे बन गए? All of us are like that. हम सभी भी वैसे ही हैं। All our inner lives are bad initially, but then what we have to do, as the next verse says, "You blind Pharisee, first clean out the inside of the cup, of the dish, that the outside also may be clean. Outside may be clean also." तो हम भी ऐसे हैं, तो हमें उसे कैसे साफ करना है? जैसे 26 वचन में लिखा है, हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज की वे बाहर से भी स्वच्छ हो। So we have to, when the Lord shows the wrong things in our inner life, we have to clean it out. जब परमेश्वर हमारे जीवन की अशुद्धियों को दिखाता है, तो हमें उसे साफ करना है। We have to confess it, forsake it, and throw it out completely, and change our ways of living. हमें पश्चाताप करना है, कबूलना है, पूरी तरह से हमें जीवन से उसे दूर करना है और परमेश्वर की राहों पे चलना है। If we have got hatred in our hearts, and we are gossiping and backbiting against other people without knowing, then we have to confess that sin to God and go and ask forgiveness from people. Then only those things will get out of our life. तो अगर हम गपशप करते हैं, दूसरों के बारे में बुराइयां करते हैं, तो परमेश्वर के सामने वो कबूलना है, पूरी तरीके से छोड़ना है, और उन लोगों से जाके हमें माफी मांगना है, तभी हम इस बातों से पूरी तरीके से शुद्ध हो पाते हैं। There is all sort of immoral things going on in our life, watching internet pornography and all these wrong things. Then we have to repent from it and ask God and really delete all those things from our laptop, from our mobiles. And one brother even went to the risk of stopping doing, not looking at his smartphone at all. He took a small non-smartphone. तो अगर हमें अश्लील चित्र या कुछ देखने की हमें इच्छा रहती है, तो हमें उसमें से भी परमेश्वर के सामने कबूल कर पूरी तरीके से उसको त्यागना है, परमेश्वर से मदद मांगनी है, और जितने भी जो हमारे पास वो चित्र या कुछ भी है उसे पूरी तरीके से डिलीट करना है। और एक भाई ऐसा भी था जो उनके पास ऐसे वो अश्लील बातों को देखते थे, उन्होंने अपना स्मार्टफोन बेच दिया और उन्हें एक साधारण सा फोन लिया ताकि वो इन बातों को ना देखें। Same thing with the love of money, which is so inside. We have to really start giving to the Lord and stop thinking about money all the time. And then we find that we'll be increasingly free from the love of money.
वैसे ही पैसों के विषय के बारे में भी हमें हमेशा देते रहना है और परमेश्वर के विषय में ज्यादा सोचना है, ना कि पैसे के विषय में। अगर हम परमेश्वर के विषय में सोचते रहेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो पैसों का प्रेम है हमारे अंदर कम होता जाता है, परमेश्वर का प्रेम बढ़ता रहता है। Yesterday we heard Brother Zach saying that we have to learn to be content with what we have. जैसे कल जैक ब्रदर कह रहे थे कि हमें जो हमारे पास है उससे संतुष्ट रहना है। With food, clothes, and whatever house that we have. खाना, कपड़ा, जो घर हमें है उससे। But most believers want to live like the unbelievers. परंतु बहुत सारे विश्वासी अविश्वासियों के जैसा जीना चाहते हैं। They want to have a show and zoom dham, everything, especially in their weddings. They just want to just behave like the unbelievers. तो वो बहुत धूमधाम तरीके से रहना चाहते हैं, खास करके उनके शादियों में हम देखते हैं वो अविश्वासियों की तरह ही दिखावा करते हैं। So they want more and more money, and that's why they have the love to desire to impress other people. उनको ज्यादा पैसे चाहिए रहता है, इसलिए उनके पास एक अभिलाषा है कि वो दूसरे लोगों को प्रभावित करे उससे। The main thing is to be content with whatever God gives us, and be happy in that. तो महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है उसमें संतुष्ट रहना है और हमें आनंद मनाना है उसमें। Let us live much more simply, brothers and sisters. हम सभी को एक साधारण सा जीवन जी रहा है भाइयों बहनों। The more things that we have in the world will not give us more happiness. जितने ज्यादा चीजें इस संसार में हम पाए वो हमें उतनी खुशी नहीं देगी। The more things we have in this world, we can see that then we'll want more and more of those things. जितना हम इस संसार की जो चीजें हैं उसे लेने की कोशिश करेंगे उतना ही हमें उसकी आशा जो है और बढ़ती जाती है उसके लिए। The unhappiest people are the rich people who have such a lot of things in their life. जो नाखुश लोग हैं वैसे लोग हैं जो जिनके जीवनों में बहुत सारे धन है, संपत्ति है। The happiest people are people who have God in their lives and they are so thankful for everything that God has given them. जो आनंदित लोग वही है जिनके जीवनों में परमेश्वर है और जो भी परमेश्वर ने उन्हें दिया है उसी में वो आनंद मनाते हैं। So thus we should really be content with all the good things that God has given us. God has given us more than we require, even for each one of us. तो परमेश्वर ने हमें जितनी भी जरूरत है उससे भी बढ़कर हमें दिया है। तो परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया है उसमें हमें पूरी तरह संतुष्ट होना है। There was this rich man who came to the Lord, young man who came to the Lord and told Jesus, I want to follow you. एक धनवान जो जवान व्यक्ति था यीशु मसीह के पास आते हैं और कहते हैं मैं यीशु मसीह आपका पीछा करना चाहता हूँ। I want eternal life. मुझे अनंत काल का जीवन चाहिए। He was such a good man. He kept all the commandments of God, and he said, I've kept all the commandments of God. तो वो बहुत अच्छा एक जवान था। वो कह रहा था कि मैंने सारी व्यवस्थाएं जो परमेश्वर ने दी है उन सारों का पालन किया है मैंने। But Jesus told that, see, one thing you lack is that you love your money very much. यीशु मसीह ने उससे कहा कि तुम में एक कमी है, वो ये है कि तुम अपने पैसों से बहुत प्रेम रखते हो। You sell all these things and give it to the poor, and then follow me. सारे जो तुम्हारे धन है बेच के गरीबों में बांट दो, फिर मेरा पीछा करो। Jesus didn't tell this to everybody, but he told this man because this man had a really craze for a lot of money. तो ये बातें जो है यीशु मसीह ने सभी को नहीं कहा, सिर्फ इस जवान से कहा क्योंकि उसके अंदर पैसा कमाने का बहुत ज्यादा उत्सुकता था। But he was very good. He was very obedient to his parents. They never committed murder, never stole, and he was so many, all the other commandments he did. But once his desire for money was there, very strong in his life. तो हम देखते हैं ये जवान जो है बाकी जो व्यवस्था है उसमें बहुत ही अच्छा था। अपने माता पिता के अधीन में रहता था, घात नहीं करता था, चोरी नहीं करता था, सारी व्यवस्थाओं का उसने अच्छी तरीके से पालन किया था। परंतु जो पैसे का जो अभिलाषा है उसके जीवन में बहुत था। So in spite of having all these things, he never was happy. तो ये सारी चीजें होने के बावजूद भी वो खुश नहीं था उसके जीवन में। But Jesus told him, you have to sacrifice it, you have to give it up. That is the cause of all your unhappiness. You love your money so much, you have to give up that love of money. यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे जो नाखुश होने का जो वजह है यही है, सारे जो पैसे तुम्हारे पास है उसे पूरी तरीके से तुम्हें छोड़ना है, उसे त्यागना है, उसका अभिलाषा। But then he felt very sad about it and he didn't want to give up. He didn't follow the Lord.
तो वो सुनकर उसे बहुत निराशा हुई और वो उस पैसों को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए यीशु मसीह का पीछा उसने नहीं किया। So many people, just to impress other people, they don't follow the Lord Jesus. तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग दूसरे लोगों को प्रभावित करने के लिए यीशु मसीह का पीछा नहीं करते हैं। They want to please their relatives, they want to please their friends, they want to please other believers. Because of that, they don't follow the Lord. उनको अपने जो दोस्त हैं उनको खुश करना रहता है, जो उनके रिश्तेदार हैं, सब लोग को खुश करना रहता है, इसलिए वो यीशु मसीह का पीछा नहीं करते। One day, brothers and sisters, you and I have to stand before the Lord. एक दिन भाइयों बहनों हम सभी को परमेश्वर प्रभु के सामने खड़ा होना होगा। And God is looking at what are my intentions of my heart. और परमेश्वर देखता है कि मेरी जो हृदय के मकसद और उद्देश्य क्या है। And what are the thoughts that are going on in my heart, in my mind. और मेरे दिमाग में और मेरे हृदय में क्या सोच है जो चल रहा है। So then we have to ask God to cleanse us. Let the words of my mouth and the meditation thought and what meditation of my heart be acceptable in your sight. और हमें मांगना है कि मेरे सोच, बुद्धि का सोच और हृदय के विचार जो है आपके जो परमेश्वर के सामने वो अंगीकार योग्य होना चाहिए। This is the reality, brothers and sisters. यही सच्चाई है भाइयों बहनों। It's not about outward show, coming for the meetings, giving money for the Lord's work and singing and doing this evangelism and so many other things that so many believers are busy about. ये वो सब बात नहीं है जो हम कलीसिया में आके बाहरी दिखावट करते हैं, पैसा देने का या गीत गाने का या तो फिर प्रचार करने का, बहुत सारे मसीही काम करने का। What are the desires of my heart? What are the things that I am happy about? What am I delighting in? मेरा हृदय के विचार क्या है, मेरी आशा क्या है, मैं किस चीजों में अपने हृदय में आनंद मनाता हूँ। Is my desires of the things of this world or the desires for things of heaven? क्या मेरी इच्छा जो है संसार की चीजों के ऊपर है या स्वर्ग की बातों पर मैं अपनी आशा को लगाया हूँ। When we look back, are these worldly desires becoming less and less, or is it becoming more and more? और हमें पीछे मुड़कर देखना है कि या संसार की जो आशा है कम होती जा रही है या मेरे जीवन में वो बढ़ती जा रही है। Yes, it should become less and less, these worldly desires. ये जो संसार की जो अभिलाषा है हमारे जीवन में और कम होना है। If the worldly desires become less and less, then we will think less about those things. तो जब ये जो संसार की अभिलाषा है हमारे जीवन में कम होता जाएगा तो हम इन संसार के बारे में फिर कम ही सोचेंगे। If I have heavenly desires more and more, I'll think more about the heavenly desires, how to please God and how to bless other people and how to see that the word of God is spread for my life and my life should be an example. अगर मैं स्वर्ग की चीजों की अभिलाषाओं में रहूंगा तो मैं स्वर्ग की बातों को सोचूंगा कि कैसे मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूं, कैसे दूसरे भाई बहनों को मदद करूं और कैसे परमेश्वर के वचनों को मैं और आगे बांटूं दूसरों से। I will be busy seeing all the wrong things in my own life rather than being occupied with the wrong things other people are doing. तो मैं व्यस्त रहूंगा अपने जीवन में जो गलत या कमियां हैं उसमें देखने के लिए, ना कि दूसरे लोगों की कमियां ढूंढते हुए मैं नहीं बैठूंगा। तभी As Jesus told the Pharisees, I will be cleaning my heart from all the wrong things and getting things out. यीशु मसीह ने कहा परिसियों से कि तुम्हारे जीवन में जो अंदरूनी जो गलती है, बुराई है, उसे पूरी तरह से शुद्ध करके उसे बाहर फेंक दो। As it says in 1 Peter chapter 3, 1 John chapter 3. पहला यूहन्ना 3 अध्याय verse 3. 3 वाक्य। Everyone who has his hope fixed or focused upon him purifies himself just as he is pure. और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। So if I fix my eyes on Jesus every day, then the Lord will show me so many things that I have to purify myself. अगर मैं अपने नजरों को यीशु मसीह के ऊपर लगाए रखूंगा तो परमेश्वर मेरे जीवन में और भी बातों को, गलतियों को दिखाएंगे जिसमें से मुझे शुद्ध होना है। So many bad habits, बहुत सारे गलत आदतें, bad attitudes, गलत जो मकसद, and not forgiving people, दूसरों को क्षमा नहीं करना, love of money, पैसों का प्रेम, sexual immoralities, जो लैंगिक अश्लीलताएं,
all sort of pride and selfishness. सारा घमंड और स्वार्थीपन, We will be keeping on seeing more of these things, and we will be busy purifying ourselves. हम ये देखने में बहुत व्यस्त हो जाएंगे और अपने आप को शुद्ध करने में हम व्यस्त रहेंगे, जो परमेश्वर हमें दिखाते जाएंगे ये सब चीज। Then our light will start shining brighter and brighter. फिर हमारा जीवन में जो है ज्योति चमकेगा। Then we'll be peaceable people of peace, having salt in our lives. फिर हम जो है शांति के लोग बनेंगे, जिनके जीवन में नमक हो। In the middle of a crooked and a perverse generation of believers and unbelievers who don't have any interest for God at all. उन लोगों के बीच में जो कि हटीले हैं और जो कुड़कुड़ाई करने वाले विश्वासी के बीच में हैं, जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते। So thus we begin to adorn the doctrine of our Lord and Savior Jesus Christ. ऐसे ही हम परमेश्वर यीशु मसीह की जो सिद्धांत है उसको हम सराहने लगते हैं अपने जीवन में। So may the Lord be praised and glorified that we start in the small things in life to really set things right in our own life. तो परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो हमारे जीवन में, हमारे जीवन की हर एक छोटी बातों में भी हमें ध्यान से परमेश्वर के वचनों के आधार हमें अपने जीवन को सुधारना है, सही करना है। And all this is done by the grace of God. तो ये सब हम कर पाते सिर्फ परमेश्वर की कृपा के द्वारा, The help of God. परमेश्वर की मदद के द्वारा। The Apostle Paul always in his letters writes, may the grace of God be with you, grace of God be with you. पौलुस ने अपने पत्रियों में हमेशा लिखा कि परमेश्वर की कृपा जो है, अनुग्रह जो है तुम्हारे साथ हमेशा बने रहे। Not by my strength, but by the grace of God. मेरे सामर्थ के द्वारा नहीं, परंतु परमेश्वर की कृपा के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा। The Apostle Paul said, what I am by the grace of God. पौलुस ने कहा, मैं जो हूँ मैं हूँ वो प्रभु की कृपा के द्वारा। Amen. I thank God for today's encouraging words. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के प्रोत्साहित वचनों के लिए। Brother Zach's yesterday's meeting was very wonderful. कल का जो ब्रदर जैक का जो सभा था बहुत ही अद्भुत था। Godly attitudes towards money and sex. भक्ति में जीवन, पैसों के विषय में और शारीरिक संबंधों के विषय में। So everybody know that the love of money is the root of all kind of evil. तो सभी लोग जानते हैं पैसों का प्रेमी है सारे दुष्टता का जो जड़ है। I was thinking that having more money is the love of money. मैं ये सोच रहा था कि ज्यादा पैसा होने का ही अर्थ है कि पैसों का प्रेम। But love of money is not like that. Even if we have small amount of money, then also we can have love of money. पैसों का प्रेम वैसा नहीं है। अगर हमारे पास बहुत ही कम भी पैसा हो तो भी हमारे अंदर पैसों का प्रेम हो सकता है। So for we need not hate money. हमें इन पैसों से नफरत नहीं करना है। Earn more money. हमें पैसा और कमाना है। Save more money. हमें बचाव करना है पैसों का। Give more money. हमें पैसा देना है। और No man can serve two masters. कोई भी मनुष्य दो जो स्वामी है उसका सेवा नहीं कर सकता। We cannot serve God and money. हम दोनों का सेवा नहीं कर सकते, परमेश्वर का और पैसे का भी। So giving is the root to hate or to not to love money. तो देना ही है वो जड़ कि हम में जो पैसों का प्रेम जो है वो नहीं होगा। That is the thing Jesus did. वही यीशु मसीह ने किया। Jesus gave everything for us, even his whole life for us. यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ दिया, उनकी खुद की जीवन भी हमारे लिए पूरा दे दिया। So share others, help others, doing good to others. किसी को सब बांटना, उनकी है मदद करना, उनके लिए अच्छे काम करना दूसरे लोगों के लिए। Next thing is learn to be content with what God has provided us. दूसरी बात ये है कि परमेश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है उसमें हम संतुष्ट रहना हमें सीखना है। That is the thing Paul told in Philippians 4:11.
वही फिलिपियो 4:11 में पौलुस ने भी कहा कि I have learned in whatever state I am to be content. यहाँ लिखा है मैंने सीखा हुआ है कैसे भी दशा में मैं रहूं उसमें मैं संतुष्ट रहूं। Yes, my dear brothers and sisters, हाँ मेरे भाइयों what बहनों, we have to be happy with what God has provided to us. हमें उसमें खुश रहना है जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें नियुक्त करके दिया है। Not to compare with rich people, हमें धनवानों के साथ तुलना नहीं करनी है, not to see the other things like cars and bungalows. दूसरों का जो गाड़ी है बंगला है उनको नहीं देखना है। Then God will give us grace to be content with what He has provided to us. फिर परमेश्वर हम पर कृपा करेगा कि हम सारी चीजें परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें हम संतुष्ट रहेंगे। God will give you a heart to help others. परमेश्वर हमें एक ऐसा हृदय देंगे जिससे हम दूसरों का मदद कर पाएंगे। God will create a kind heart to help others. परमेश्वर हम में एक करुणामय हृदय का उत्पत्ति करेगा ताकि हम दूसरों की मदद करें। Praise God. Amen. परमेश्वर की स्तुति। I thank God for the today encouraging word. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के प्रोत्साहित वचनों के लिए। So, Brother Zach mentioned two things. It was touched my heart. पर जैक ब्रदर ने कुछ बातें कही जो मेरे हृदय को छू लिए। So, whether we are, so it is our goal or our aim, it is not to go to heaven. तो हमारा जो मकसद है उद्देश्य है सिर्फ ये नहीं है कि हमें स्वर्ग में जाना है। It is, I have to be there, Jesus is there, I have to be there. तो यीशु मसीह जहाँ है मुझे भी वहाँ होना है। So, I have to be changed like Jesus Christ. तो मुझे अपने जीवन को जो है यीशु मसीह की जैसा करना है। If I am traveling in the train, it is the destiny where I can reach the Jesus Christ. So that train I have to travel. तो मैं अगर कोई ट्रेन में बैठा हूँ तो मुझे वो मुकाम पे पहुंचाएगा जहाँ पे मसीह मुझे लेके जा रहा है, तो वही ट्रेन में मुझे बैठ के जाना है। So if I am sitting in the correct train, so as long as I am moving forward, moving towards the destiny, so it is very near. तो अगर मैं सही ट्रेन में बैठा हुआ हूँ तो मेरा जो मुकाम है उसकी ओर मैं जा रहा हूँ, तो जो मेरा मुकाम है बहुत ही निकट है मेरे। So it is very near. वो बहुत ही निकट है। So otherwise, if I am sitting in the wrong train or wrong direction, then I am going towards far away from Jesus Christ. अगर मैं कोई गलत ट्रेन में बैठा हूँ जो गलत दिशा की ओर मुझे लेके जा रहा है तो मैं यीशु मसीह से बहुत दूर हो गया हूँ। I can say even I am also traveling, I am also practicing the Christian everything. तो मैं कह सकता हूँ मैं भी मसीही हूँ, मैं ही मसीही काम करता हूँ, ऐसे मैं कह सकता हूँ। So that is why we have to ensure that whether we are in the right train or the right direction. तो हमें इस बातों का सिद्धीकरण करना है कि क्या मैं सही ट्रेन में बैठा हूँ, क्या मैं सही दिशा की ओर जा रहा हूँ कि नहीं। Nothing but that I have to cleanse, I have to go to God, I have to confess my sin, I have to repent, then I have to cleanse. So this routine work I have to do every day. तो और एक बात जो है, मुझे अपने पापों का कबूल करना है, परमेश्वर के सामने जाकर कबूलना है, पूरी तरीके से उसमें से शुद्ध करना है। ये जो बात है मुझे हर दिन करना है। So Zach mentioned that the most of the people they have failed in the two area, which is love of money and the sexual desires. तो जैकब्रत ने कहा कि बहुत सारे लोग जो है दो जो विषय है उन पर असफल हुए हैं, वो है पैसों का प्रेम और जो शारीरिक संबंधों के विषय में। They are not very careful in these two area. Now they are very useless for God. वो कहते हैं कि वो लोग जो हारे हुए हैं इन दोनों बातों में सावधानी से नहीं रहे, इसलिए वो परमेश्वर के लिए निकम्मे ठहर गए हैं अभी। I just judge myself that I am very useless for God because of I am not take very careful in this two area. तो मैं अपने आप का न्याय करता हूँ कि मैं परमेश्वर के लिए निकम्मा ठहरा हूँ क्योंकि मैंने इन दो
क्षेत्रों में सही तरीके से सावधानी नहीं बरती है मैंने। I lost my the first best, but now I'm in the second best or third best. But still, God is faithful. God is helping me to achieve the what God appointed for me. तो मैं वो जो पहले स्थान तो खो चुका हूँ, तो दूसरी या तीसरी पे हूँ, परंतु परमेश्वर मुझे सहायता करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे किस चीजों के लिए चुना है, मैं वो चीजों को कर पाऊँ। I just want to read from 1 Corinthians chapter 6 verse 13. पहला कुरिन्थी 6 उसका 13 में पढ़ना चाहता हूँ। Food is for the stomach, and the stomach is for food, but God will do away with both of them. Yet the body is not for immorality, but for the Lord, and the Lord is for the body. भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा, परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए और प्रभु देह के लिए है। So most of the desire we have in this both area, especially in sex as well as in the food. तो हम देखते हैं हमें बहुत सारी अभिलाषाएं रहती है खाने के विषय में और लैंगिक विषयों में। If I'm not disciplined in this area, definitely I cannot give my body to God. अगर मैं इन दोनों विषयों में अपना अनुशासन नहीं लाता हूँ, तो ये पक्का है कि मैं अपना शरीर जो है, देह जो है, प्रभु को नहीं दे सकता। He mentioned that wherever is idolatry and money, both are there, then definitely the sexual sin will be there. वो कहते हैं कि जो मूर्ति पूजा और पैसा और जो पैसे का प्रेम कहीं भी है, तो वहां पे व्यभिचार को जो पाप है वो होगा, वो कहते हैं। So if I want to earn more money, if I want to become rich, it is like good things, but Satan put some trap, I will fall down in the trap. मुझे ज्यादा पैसे बनाने की इच्छा है, पैसा बड़ा होने की इच्छा है, तो अच्छी बात है, परंतु क्या होगा कि शैतान जो है उसमें कोई जाल डालेगा हमारे लिए और हम उस जाल में फंस के गिर जाएंगे। Definitely I will fall down. और फिर हम गिर जाएंगे उसमें। So I have to be careful in this too, and I also want to add the food. So these 3 areas, I have to be very careful in these 3 areas. Then I can be useful for God. तो मैं इन सारे 3 क्षेत्रों में मुझे बहुत सावधानी से रहना है, खाने के विषय में भी, तभी मैं परमेश्वर के लिए एक योग्य बन सकता हूँ, उसके लायक बन सकता हूँ। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। पहला थिस्सलुनीको 3 में मैं पढ़ता हूँ 3। So that no one would be disturbed by 3 so that and keep you from being shaken by the troubles you were going through, but you know that we are destined for such troubles, कि कोई इन कलेशों के कारण डगमगा न जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। Even while we were with you, we warned you that troubles would soon come, and they did, as you well know. क्योंकि पहले भी जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें कलेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा हुआ और तुम जानते भी हो। तो ये वचन परमेश्वर मुझे इनकरेज कर रहे थे कि इन द लास्ट डेज विल सो मेनी ट्रबल्स विल कम, सो मेनी। जब हम आत्मा में बढ़ते रहते हैं तो शैतान का जो अटैकमेंट है हमें ज्यादा होता है, वो हमें हमला ज्यादा करता है, क्योंकि हम वी आर सोल्जर ऑफ क्राइस्ट। एंड परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से मुझे अगुवाई करते हैं कि बी फेथफुल, बी केयरफुल इन दिस लास्ट डे, पीपल विल मॉक यू। एंड बहुत सारा मैथ्यू 24 में भी लिखा है कि भरमाने वाले आत्माएं आएंगे, बहुत सारे लोग दिखाएंगे कि आई एम अ क्रिश्चियन, बट वी बाय देयर कैरेक्टर जीसस टोल्ड अस, यू नोटिस दैट दे आर नॉट एट ऑल क्रिश्चियन। तो परमेश्वर मुझे बीच बीच में एंजॉय भी भर देते, बोलते जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ, ऑलवेज बी थैंकफुल। और जब जॉन चैप्टर 17 में हम पढ़ते हैं, वहाँ पे परमेश्वर बताते हैं कि मेरे लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। उसमें लिखा है कि परमेश्वर आपका धन्यवाद, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका वचन हमने पहुंचा दिया है। तो परमेश्वर का मैं आभारी हूँ कि उनके वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा
और जो भी ट्रबल, समस्या, डिस्ट्रैक्शन और आता है, उस सब में भी परमेश्वर मुझे और मजबूत करते हैं कि जितना समस्या ज्यादा आता है उतना हम प्रभु में बढ़ते जाते हैं। उससे मालूम पड़ता है कि परमेश्वर के हम बच्चे हैं और परमेश्वर हमें बचाता है और संभालता है। क्योंकि दूसरे लोगों में समस्या क्यों नहीं रहता? क्योंकि उनको आत्मिक रूप से मरे रहते हैं और उनको पवित्र आत्मा ही जिला सकता है। तो परमेश्वर इन दिनों मुझे परमेश्वर अगुवाई करे कि कुलुस्सियों चैप्टर में कि कुलुस्सियों चैप्टर में कि बाहर वाले के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो, क्योंकि अवसर को बहुमूल्य जान के दूसरों के साथ, बाहर वाले के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो, क्योंकि समय बुरा है। तो एक और वचन में शेयर करना चाहूंगा। एक मिनट, फर्स्ट लाइन, कुलुस्सियों के चैप्टर 3 में 5 और 6। हाँ, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वाले के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। तो परमेश्वर इन दिनों मुझे सिखा रहे कि ऑलवेज बी केयरफुल द वे यू टॉक, द वे यू थिंक, द वे यू बिहेव टू आउटसाइडर पीपल हु आर नॉट अनबिलीवर एट ऑल। तो परमेश्वर मुझे अगुवाई कर रहे हैं कि हमेशा आनंद रहो और प्रार्थना करते रहो। तो इन दिनों मेरा प्रेयर लाइफ भी बहुत इंक्रीज हो गया है और परमेश्वर के साथ आनंद होना और संगति में बहुत ही मैं आनंद कर रहा हूँ। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो पवित्र आत्मा से अगुवाई करते हैं, क्योंकि जो भी ट्रबल्स वगैरह आते रहते हैं तो मैं सोचता हूँ परमेश्वर ये सब ट्रबल्स मेरे जीवन में क्यों आ रहा है। तो मुझे मालूम पड़ गया कि मैं आत्मिक में परमेश्वर के साथ जब आगे बढ़ता हूँ तो शैतान का जो अटैकमेंट है ज्यादा हो जाता है। तो इससे मालूम पड़ता है कि हमें बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए, जागते रहना चाहिए, प्रार्थना करते रहना चाहिए। आप तो प्रभु का वचन है जो और किसी को भी शेयर करना है, एक 2 और 3 मिनट से। प्रभु ने हमसे कल का जो अटेंड किया ब्रदर मीटिंग, वी हैव हर्ड दैट एंड एनीथिंग दैट हैज टच्ड यू, जो भी प्रभु आपको टच किया है वो भी अपना व्यक्तिगत जीवन से थोड़ा थोड़ा शेयर कर सकता है और सबको encourage कर सकता है, प्रोत्साहन कर सकता है। So let us take this time because about 4 or 5 people can share briefly. Praise God. मुझे जो इंस्पायर किया कल के वचन में जो ब्रदर जैक बोल रहे थे, वह प्रेरितों के काम 17 Acts 17:30 उसमें बताया गया है, God tolerated man's past ignorance about these things, but now he commands everyone to put away idols and worship only him. तो ब्रदर जैक उसमें बोल रहे थे कि पहले के अगर हमें कुछ अनजान थे ये सब चीजों के बारे में कि ये गलत है, सही है करके, ये पाप है, पाप नहीं है करके, तो प्रभु उसको ओवरलुक करता है, मतलब उसको नजरअंदाज करता है। बोलते है कि अब तक तुम्हें पता नहीं था पर अब तुम्हें पता है, तो अब तुम उसे ओबे करो, अब तुम उसे पालन करो। और ब्रदर ने इतना ये भी बोला कि अगर तुमने जानबूझ के भी तुमने गलत किया, पता हो के कि गलत है सही है, फिर भी तुमने गलत किया है, तुम पाप में जी रहे थे और तुम पाप को तुमने सीरियसली नहीं लिया, फिर भी प्रभु तुम्हें उसको एक इग्नोरेंस ही देखते, एक नजरअंदाज ही देखते, कि तुम्हें पता नहीं हो कितना सीरियस था वो सिन, कि उससे वो सिन से कोई नरक में भी जा सकता है, वो सिन में कोई अपना रिवॉर्ड भी खो सकता है। तो उसको भी प्रभु नजरअंदाज करते हैं कि वो सोचते हैं कि वो इग्नोरेंस में किया है करके। इसलिए हमें बहुत होप है, बहुत आशा है हमारे लिए कि हम जहाँ पे भी हो, हमने भले अब तक कितना भी मैस किया अपने लाइफ का, अगर हम अभी से शुरुआत कर अपना जीवन एकदम प्रभु के लिए जिए और हम प्रभु से एकदम पास रहे, तो हमारे लिए फिर भी बहुत होप है, हम फिर भी प्रभु के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं इस दुनिया में और प्रभु के राज्य में। आमीन।
मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कल के जो वचन के लिए जो जैक बदर के द्वारा सुनने को मिला। कल बहुत सारी बातें जो थी जैक बदर ने बताई, वो सच में वो मन को बोलते ना, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार रहता है जो घूमते गांठों को पूरा तोड़ देता है, वैसी हालत हो गई थी। तो ब्रदर ने वही बताया, एंड में जब बताए थे तो उन्होंने बोला था कि पुराने समय में आजकल 90% लोग पुराना नियम को ही फॉलो करते हैं, क्रिश्चियंस लोग, इसलिए वो जय का जीवन नहीं प्राप्त करवा रहे। तो उन्होंने बताया था कि पुराने समय में एनिमल्स को टुकड़े टुकड़े करके उसको फिर सैक्रिफाइस करते थे। तो वही जैक बदर बता रहे थे कि वो टुकड़े टुकड़े क्यों करते थे, क्योंकि बाद में उनको रोमियो की किताब में जो पता चला, अपने शरीर को पवित्र सैक्रिफाइस करके परमेश्वर को समर्पित करो। तो वही जब हम पाप करते हैं, हमारे जबान को पहले सैक्रिफाइस करना है, हमारे आंखों को जो गलत देखती है उससे सैक्रिफाइस करना है, हमारे हाथ अलग कुछ गलत काम करते हैं उससे सैक्रिफाइस करना है। तो हमें भी एक एक चीजों को टुकड़े कर करके सैक्रिफाइस करना है, तो हम यीशु के समान दिन प्रतिदिन बनते जाएंगे। और होप के विषय में भी बताया कि जिसने जितना पाप किया, पाप की क्षमा है वही सबसे ज्यादा प्रेम कर सकता है। तो उसका बहुत अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने। जो मरियम मगदलिनी थी, उसके जो पाप थे बहुत थे, लेकिन उसे वो जब वो शिमोन एक फरीसी के घर में थी, उसने पूरा इत्र उंडेल के उसका अभिषेक किया था। लोगों ने उसका ये भी किया था उसको, लेकिन प्रभु ने कहा कि वो उसके जो अधिक पाप थे क्षमा हो गए। और जब एंड में जब उसका टेस्ट आया, जब यीशु मसीह को गाड़ा गया था, वो रात के वक्त सब चले गए थे, पतरस यूहन्ना सब चले गए थे, जिन्होंने बोला था हम मरने तक प्रभु आपके साथ रहेंगे, मरने के बाद भी हम आपसे अलग नहीं होंगे। लेकिन मरियम मगदलिनी ने जो उदाहरण, प्रेम का जो उदाहरण बताया, वो प्रभु से कितना प्यार करती है कि उसने जब एक व्यक्ति वहां पे उन्हें मिला तो वो बोलती कि मुझे उसका शव दे दो, मैं उठा के लेके जाऊंगी। एक स्त्री रह के वो ऐसा बोल रही है। इसलिए प्रभु ने उसे अपने आप को प्रकट किया और बताया कि मैं अब तक महिमा में नहीं गया हूं करके। तो सबसे पहला प्रकटीकरण मरियम मगदलिनी को ही दिया, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा प्रेम किया। तो हम लोग भी हमारे जीवन में अगर प्रभु को सबसे प्रायोरिटी पे रखे और सबसे ज्यादा प्रेम रखेंगे, तो प्रभु जरूर हमसे बातें करेगा और हमें आशीषित करेगा। Hello. God gives hope for everybody. So you can translate. Yes, brother. Yeah. So God gives hope for everybody, irrespective of what the condition is. तो परमेश्वर सभी को आशा देते हैं, हालांकि उन्होंने कितना भी गलतियां, कितने भी पाप किए हो तो भी। The worst people in Jesus' times were the Pharisees. तो सबसे बुरे जो लोग थे यीशु मसीह के समय में वो फरीसी थे, because they were the greatest, they were the hypocrites, and that is what the worst sinners are, people who are hypocrites in the eyes of God. तो जो लोग जो पाखंडीपन में है, जो कपट में जीते हैं, वही है सबसे बुरे पापी यीशु मसीह के नजर में। But even to them, Jesus said, you blind Pharisee, first you clean up your heart, then it'll go well with you. तो उनसे यीशु मसीह ने कहा कि ये अंधे फरीसियों, तुम अपने जो पात्र है उसको अंदर से साफ कर दो ताकि तुम्हारे साथ आगे भला हो। So there is hope for the worst believer. God never condemns anybody. तो जो कितने भी जो बुरे विश्वासी हैं उनके लिए भी एक आशा है, परमेश्वर किसी को दंड में नहीं रखता। If you start repenting right today, अगर तुमने आज से ही पश्चाताप करना शुरू कर दिया and set things right one by one in different areas of our life,
हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में तुमने एक एक चीजों को अगर सही करने की आज से तुम शुरुआत करते हो, we will see a wonderful change in our life and our life becoming so fruitful and pleasing to God and pleasing to men. तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक बदलावट आएगा। हमारा जीवन जो है परमेश्वर के लिए एक फलवंत होगा और इंसान के लिए भी फलवंत हो जाएगा। And God will be with us and He'll encourage us. और परमेश्वर हमारे संग रहेंगे, वो हमें प्रोत्साहन देंगे। So let us pray, brothers and sisters. हम सभी प्रार्थना करेंगे भाई बहनों। तो परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं कि इस समय आपने हमसे बात किया है। आप हमारा आंतरिक जीवन को देखते हैं प्रभु जी, हमारा बाहरी जीवन नहीं, हमारा मिनिस्ट्री को नहीं प्रभु। हम आपसे पसंद आप आपसे पसंद होना है प्रभु जी, कि हमारा जीवन में एक मीक एंड क्वाइट स्पिरिट रहे प्रभु, एक हम्बल नम्र और दीनता से हम चले प्रभु जी। आपके साथ जो कुछ भी आप बात करते हैं हमसे तुरंत उसका पालन करें प्रभु जी। एक दिन आप माँ बाप के सामने खड़े होना है प्रभु जी, कोई हमारे साथ नहीं होगा प्रभु, लेकिन हम आपको आपसे ही आपका दिल का जजमेंट और जांच होगा प्रभु जी। प्रभु हमारा जीवन में एक उत्सुकता आवे क्या कि आप आपको see you face to face with joy, Lord. Help us, Lord, to cleanse ourselves, Lord, for everything, Lord, and set things right. Truly, Lord, that we will bring a glory to you, Lord. Forgive us, Lord, for doing the wrong things. Help us, Lord, to do the right things from today onwards, Lord. Help us to repent from it, Lord. Give us a mourning in our hearts. प्रभु हमारे दिल में एक दुख दे दिए प्रभु कि हम आपकी तरह आए नहीं है प्रभु जी। हालेलुया लॉर्ड, सबको आशीष दे प्रभु जी। ये हमसे फिर से बात करें प्रभु, हम मीटिंग के भी बाद भी, और आपका महिमा आपका जीवन हमारे जीवन में ही बढ़े प्रभु। हालेलुया लॉर्ड, यीशु के नाम में हम मांगते हैं।